Okay, so welcome to the class. In last lecture, we discussed techniques of integration, which was mainly focused on antiderivatives. Today, we'll be discussing definite integral, that is obviously integration. As I explained last lecture, we'll be discussing fundamental theorem of calculus, part 1 and part 2 both, and area under the curve and etc. So we talk about integrals today. What is the concept of integrals, the basic concept of integrals, as we did and finding derivatives by using definition of derivative, that is known as ab initio method, or first principle for finding derivative of a function at a point. Similarly, we would find integral of a function in an interval by using its definition. First, what do we mean by integral? How do we find integration? So at the beginning, integral is basically defined as area under the curve. But keeping in mind, we use area under the curve or area between the curve and x-axis to find integration of a function. Later on, we'll be using integration to find area between a curve and x-axis. But keep in mind that integration doesn't mean area under the curve all the time. Sometimes it's okay, but all the time integration doesn't mean area between a curve and x-axis. हम area को use करते हैं to find integration or to define integration as well. और फिर बाद में हम इंटीग्रेशन को ही यूज करके हम एरिया ही को फाइंड करेंगे. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंटीग्रेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एरिया या एरिया ऑलवेज मींस इंटीग्रेशन, right? Okay, so if we have a function like you see here in this case, y is equal to 1 minus x squared, and we want to estimate this area, the region R, from 0 to 1. That's the initial point 0, and that's the final point 1. What would be the area of this blue region? See this one. That is obviously the area between curve y is equal to f of x. This is the blue color, y is equal to f of x, which is in this case, we are considering a specific case, y is equal to 1 minus x squared. If it was a straight line like that, let's suppose if it's a linear, so it would be in a triangle, and you know area of a triangle is what? That is half base into perpendicular. So base length is 0.5, whereas perpendicular in this case is 1. Sorry, base is 1, not 1.5, and altitude is also 1. The height is also 1. You would simply say area of this right angle this triangle is what? That will be something 1 by 2 into 1 into 1. But if it is not a straight line, okay, if it is not a straight line, then we cannot use those standard formulas for finding area of this region. This region is basically not a regular shape. Whenever you use the word regular shape, so for regular shapes, usually you know circle is a regular shape whose area is known pi r square. Okay, triangle can be considered as a regular shape whose area is base into altitude. So to find this type of area,
what do we do? We अच्छा, मैं बात कर रहा था रेगुलर शेप्स की, तो उसमें रेक्टेंगल जो है वो भी रेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है। And the area for rectangle can be found easily. That is, we discussed that in last lectures as well. That is base into perpendicular or length into height. That's the area of a rectangle. We may consider trapezium as well. That is the something like that. ये भी एक regular shape, we can consider it. That is base, and this is another one, and that is altitude. So area of this will be sum of these two multiply by this height and divided by 2. That's area is 1 by 2 a plus b into h. That's the area of trapezium. So ये भी रेगुलर शेप में कंसिडर होता है, एटसेट्रा। लेकिन अगर इस तरह से रेगुलर शेप ना हो तो फिर उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? तो द प्रोसीजर वी आर एक्सप्लेनिंग हियर that at the first instant we can estimate this area, we can approximate this area, and then we can find its actual area as well. अच्छा, ये चीज़ें में रख लें। आई होप आपको ये आइडिया होगा ग्राफ से। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सपोज दैट इज 0.1 और समथिंग, ओके, तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ग्राफ पे, everybody knows that this point will be here, okay, this point is this one, and that would be something like 1 minus 0.1 square is almost 0.99 something, because it's 0.01, and that becomes 1 minus 0.01 is 0.99. Okay. And this 0.99 is basically this length. We can say that if you take any point on x-axis A, let's suppose, and then you take any point on the curve, this one, the length of this line will be basically what? This will be the value of function at that point. अगर ये पॉइंट A है तो ये जो हमारे पास इसकी लेंथ होगी इस लाइन की, that will be f of a. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है, यूं, ताकि हम अप्रोक्सीमेट कर सके इस एरिया को, समथिंग लाइक दैट। एक और रेक्टेंगल ऐसा यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये एरिया में अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो इफ यू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस इज सिंपल रेक्टेंगल, this is a rectangle, this is a rectangle, this rectangle, and so on. We'll be constructing rectangles there and approximating that area, और फिर इन सब एरियाज को हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? यू सी, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, लेट्स सपोज दैट इज डेल्टा x1, एंड हाइट यू सी, अगर हमने ये पॉइंट x1 लिया हुआ है तो दिस विड्थ विल बी, या लेंथ विल बी व्हाट? इट विल बी f of x1। इसी रेक्टेंगल की जो हमने width ले ली है, the width is delta x1, while the height will be here, this will be f of x1. The area of this rectangle will be basically x1 into f of x1. फिर यहाँ पर आएंगे, इसका भी जो हाइट है ये f of x2 हो जाएगा, you see that, और ये जो लेंथ है, लेट्स सपोज ये डेल x2 है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, इसका भी एरिया फाइंड हो गया, इसका भी, और फिर इन सब को हम ऐड करते हैं, विच बेसिकली गिव यू व्हाट? अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये वो कंसेप्ट है जिससे हम इस एरिया को अप्रोक्सीमेट करते हैं,
और फिर जब इस कंप्लीट एरिया को, इस अप्रोक्सीमेशन है, और फिर हम आते हैं एक्चुअल एरिया की तरफ, तो एक्चुअल एरिया फिर क्या होता है, दैट बिकम्स इंटीग्रल फ्रॉम, इन दिस स्पेसिफिक केस इट विल बी 0 to 1 एंड दिस इज 1 minus x स्क्वायर। कैसे करते हैं, आगे स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन कि हम इंटीग्रेशन पे कैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल एरिया है ये बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, ये बेसिकली कंटिन्यूस सेंस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, और ये उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास आ जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब वही है कि कंटिन्यूस सेंस में इसको सम करना। Okay, that's the procedure to estimate area under the curve. हम क्या करते हैं पहले, अगर हम दो रेक्टेंगल्स ले लें, ठीक है, इस इंटरवल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हमारे पास लेंथ जो है ये 0.5 है, राइट, दिस इज आल्सो 0.5। तो हमने इस इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, एंड एज आई सेड वी कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगल्स, ठीक है। लेकिन इसमें हमने रेक्टेंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए, इसमें तीन किस्म के रेक्टेंगल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, ठीक है, मैनी रेक्टेंगल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप के, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें जो रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, यू सी दिस इज वन रेक्टेंगल हियर, जिसका हमने ये लेंथ ले ली, ये विड्थ हो जाएगा और ये इसका लेंथ होगा, यहाँ से ऐसे ये इसकी लेंथ होगी। और फिर इस रेक्टेंगल का हमने एरिया ले लिया, जो कि इस स्पेसिफिक केस में क्या होगा, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स नॉट। अगर हम इसको एक्स नॉट कह दें, लेट्स सपोज इनिशियल वैल्यू, फिर इसके बाद x1 कह दें, और फिर इसके बाद इसको हम x2 कह दें, लेट्स सपोज, ठीक है। ये दोनों सेम है तो लेट्स कॉल दिस डेल्टा x। हम मोस्टली इसमें सेम लेते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेम हो, ठीक है। तो यू सी इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रेक्टेंगल इट्स एरिया विल बी दिस वन, दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ये इस रेक्टेंगल, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स वन इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, वी ऑब्टेन दिस एरिया, ज़हन में रहे। अगर आपको ये नजर आ रहा है तो आई डोंट नो, लेट मी ड्रा समथिंग इरेगुलर, ऐसे हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ये जो कि वो एरिया नहीं है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेशन हो रही है इसमें, ये इस रीजन का एरिया है, ठीक है। मसला क्या गया इसमें, तकरीबन उसने एरिया तो अप्रोक्सीमेट कर दिया, लेकिन ये जो पार्ट है ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया। हमें एरिया ये चाहिए था, ये वाला पार्ट हमें चाहिए था, लेकिन हमने इस पार्ट को एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया है, अप्रोक्सीमेशन हो गई है, दैट्स ओके, राइट। So what would happen if we increase the number of rectangles? You see, हम फर्दर उसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर दें, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया इसके बीच में, जो कि नेक्स्ट फिगर बी में है, we consider one more point in the midpoint there, so we will construct, you see, if we draw a straight line here, okay, so we introduce one more rectangle in it. Similarly, we construct one more rectangle here.
तो जब आपने रेक्टेंगल्स को इंट्रोड्यूस किया, अब ये एक्स नॉट हो जाएगा, this will be x1, then x2, x3 and x4. But what happens, you see, as we increase the number of points, number of division, ये जो पार्ट पहले मौजूद था अब वो एक्सक्लूड हो गया इससे, ये जो एरिया था वो अब इससे मजीद एक्सक्लूड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा एक्चुअल की तरफ कम हो गया है, और अब ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द एक्चुअल एरिया। सी फ्रॉम हेयर, उसमें वो वाला पार्ट जो था यहाँ पर जो पिछले केस में शामिल था ये अब वो नहीं है, यहाँ पे ये शामिल था, अब वो पार्ट एक्सक्लूड हो गया, ये वाला एरिया जो है। इन जो ज्यादा पार्ट हमारे पास एरिया में आ रहा था उसमें से हमने कुछ पार्ट को काट दिया। इफ यू इंक्रीज फर्दर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, oh come on, if you take one line here now, if you take two more points between these two, this is one point, this is another point, we increase the number of points, तो सी ये रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे, फिर ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से ये रेक्टेंगल बन जाएगा यूं, ये तो ठीक है, जैसे बन गया ऐसा बन गया। तब ये क्या हुआ कि इसमें मजीद ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये क्या हुआ, ये एक्सक्लूड हो गया है। तो जैसे जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टीशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया है उनका सम दैट इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल एरिया, ठीक है। And then you see that is the approximate area f of c1, जिनको मैंने x1 x2 कहा वो बेसिकली हम यहाँ पर c1 वगैरह कहते हैं इसको, c1 c2 c3 एंड सो ऑन। अब ये c1 c2 c3 क्या है, इस पे डिस्कशन फिर होगी। ये अभी तो हमने कौन से पॉइंट्स ले लिए, हमने अभी कंसीडर किए हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो c1 हम ले रहे हैं, दे आर बेसिकली द राइट एंड्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है ना, देखिए ये हमने इसका हाइट ले लिया इधर से लेकर इधर तक, फर्स्ट रेक्टेंगल की ये हाइट ले ली। सेकंड रेक्टेंगल के रिपेयर हमने क्या किया, हमने ये हाइट ले लिया। इस केस में वही चीज़ है, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए हाइट है जो कि इस इंटरवल 0 से लेकर 0.25 तक, इसका राइट एंड हम ले रहे हैं। सेकंड फिर हमने ये ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये विच इज बेसिकली द लेफ्ट एंड ऑफ दिस इंटरवल। इसके लिए फिर हमने ये ले लिया which is the left end of this interval and so on। फिर हमने ये ले लिया which is the left end of this one, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास जो C1 हमने लिया, दे आर ऑल लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल। ओके, इन सिमिलर वे जो हमने वहां पे ले लिया, हम ये रेक्टेंगल्स ऐसे भी बना सकते हैं जो यहाँ पर है। चलो मैं उसी में ड्रा कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाए। यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए थे वो लेफ्ट एंड के साथ बनाए थे, लेकिन वी कैन कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल हियर। ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह हमने बना दिया रेक्टेंगल लेट्स सपोज, और दूसरा फिर यही रेक्टेंगल बनेगा।
अब हुआ क्या, अब इसमें हमारे पास कुछ एरिया यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कर दिया और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड हो गया। दिस पार्ट इज दिस पार्ट डजंट लुक वेरी नाइस। आपको शायद इसका कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि राइट का मतलब क्या है हमारे पास। लेट्स कम टू पार्ट बी, उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। पार्ट बी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई है, तो ये फर्स्ट डेल्टा एक्स हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो रेक्टेंगल इसमें बनाए थे हमने लेफ्ट से बनाए थे, अब हम राइट से रेक्टेंगल बना रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा हम यहाँ से बनाएंगे। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो नजर नहीं आ रहा, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, इधर से फिर हम ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस रेक्टेंगल, एंड फ्रॉम हियर वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस रेक्टेंगल, और फिर अगला यहाँ पे आ जाता है तो वो इधर ही होगा। बहरहाल वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इधर से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, अब हम ये रेक्टेंगल्स कंसिडर करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जब इसका एरिया फाइंड करेंगे, इफ यू कॉल दिस इज सी नॉट, इफ दिस इज C1, this is C2, and so on. This will be C3, this will be C4, if you call them something like that. तो इसका जो एरिया हम लेंगे इस रेक्टेंगल का, वो यहाँ से ये वाला हम हाइट लेंगे, ये वाला। For a second interval we take this height now. If you remember, इसके लिए फिर हम ये वाला लेंगे। पिछले केस में हमने लेफ्ट हैंड लिए थे, इस बार हम राइट हैंड लेंगे। यहाँ पर आखिर में फिर इसकी हाइट 0 हो जाएगी, बिकॉज 1 पे वैल्यू 0 है, तो ये रेक्टेंगल कंप्लीटली इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने कुछ एरिया छोड़ दिया है, ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट रह गया, जहाँ पे पिछले केस में एरिया इंक्लूड हो रहा था, अब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये वाला एक्सक्लूड हो रहा है, और साथ में ये एरिया भी एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। और उसके फिर यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो C0 हो जाएगा, C0, ये C1, सॉरी ठीक है, C1 ही ठीक है, वो वाला फिर C0 आएगा उसमें, पिछले वाला था, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया वही सी राइट। यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है। फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आएगा। तो दैट इज सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, वी हैव टेकन C1 to be the right end of the interval. तो हम राइट भी ले सकते हैं, हम लेफ्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट केस है यहाँ पर, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, इफ आई गो बैक टू दैट थिंग अगेन, यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, पॉइंट्स तो हम ले लेते हैं। लेट मी डू दैट। थोड़ा सा मैं किधर गया यार, got lost with this cursor, पता नहीं क्या है। If I do that geometry again, the third possibility is what? We first split the interval, whatever, let's take 2 points here. So this is C1, this is C0, this is C2, ठीक है। तो एक केस में हमने रेक्टेंगल यहाँ से बनाया फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दूसरे में फिर हमने रेक्टेंगल यहाँ से यूं बनाया, ठीक है। ये पॉइंट सी आ गया ना यहाँ पर। तो एक केस में हमने इधर से रेक्टेंगल ऐसे बना दिए, जो राइट हैंड वाला केस है। एक केस में हमने यहां से रेक्टेंगल ऐसे बना दिए, इधर से एक बन गया, दूसरा उधर से बन गया।
थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं कि इस इंटरवल का हम मिड पॉइंट लेते हैं। फर्दर पार्टीशन वही होगी, लेकिन इनके हम मिड पॉइंट लेते हैं और रेक्टेंगल यहां पे बनाते हैं ऐसे। ये तो आपके पास C1 C2 की वैल्यू है, यहाँ पर ये C1 पे हो गया और ये C2 पे, तो यही वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, इस पॉइंट पे लेकर हम इधर भी ले जाते हैं इसको और इधर भी ले जाते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं। दूसरा रेक्टेंगल हम यहाँ C2 पे जो वैल्यू आती है वट एवर इट इज, डोंट केयर, वो तो जीरो होगा इस केस में। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल इस पॉइंट पे बनाते हैं, इधर भी लेके जाते हैं और इधर भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम इसकी जो हाइट ले रहे हैं अब, वो हाइट जो होगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ठीक है, ये थर्ड केस है। फोर्थ में फिर यह जो कि हम यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फोर्थ में हम कोई भी सुटेबल वैल्यू देख रहे होते हैं। यू टेक एनी सी बिटवीन द इंटरवल, एनी पॉइंट, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। वो पॉइंट हम ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं जहां पे हम कम से कम एरिया को एक्सक्लूड या इंक्लूड करें। वी टेक दैट पॉइंट, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको डिस्कस अब इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें हम ये सी के पॉइंट्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही है कि हमने पिछले केस में लेफ्ट हैंड लिए थे, यहाँ पर ये राइट हैंड पे वो बन रहा है रेक्टेंगल्स, यहाँ पर फिर वो मिडिल पॉइंट पे रेक्टेंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो जनरली हम यही कह सकते हैं कि ये इसका रूल है। ठीक है, जिसमें सी आईज जो है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सी आईज होंगे फिर ये वाले पॉइंट्स होंगे, वेयर एज इन प्रीवियस केस जो सी आईज होंगे, यानी C1 यहाँ पे होगा ये पॉइंट, C2 फिर ये पॉइंट होगा एंड सो ऑन। और फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, तो दैट विल गिव यू बेसिकली approximate area under the curve. Now what would happen if we take delta x goes to 0 or n goes to infinity, चाहे आप लेफ्ट राइट रेक्टेंगल दे रहे हैं या राइट रेक्टेंगल दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, तो यू सी दैट जैसे हम रेक्टेंगल्स को बढ़ा रहे हैं राइट एंड वाले केस में, इसमें आप राइट एंड ऑफ द इंटरवल ले रहे हैं और रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, यू सी हियर, तो ये एरिया स्टेप बाय स्टेप उसमें इंक्लूड होता जा रहा है। मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, ये जो इंक्लूड वाला एरिया ना, ये एक्सक्लूडेड जो एरिया था, वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। द सेम थिंग यहाँ पर जो बाहर से हमारे पास एरिया आता है वो क्या है, वो भी स्टेप बाय स्टेप कम होता जाता है। जैसे कि हम n को बढ़ाते हैं, n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, एंड डेल्टा x इज व्हाट, दैट इज द विड्थ ऑफ इंटरवल। तो अगर आप इंटरवल की विड्थ को बढ़ाते जाते हैं, कम करें सॉरी, या n को बढ़ाते जाते हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है, दैट इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। उसी के मुताबिक क्या होगा, जो अप्रोक्सीमेट एरिया होगा इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल एरिया। अब ये दो चीजें हम यहां पर यूज कर रहे हैं इस केस में स्पेसिफिकली, बस तो मैंने बता दिया कि हम चार चीजें यूज कर सकते हो, सी की वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप ये दो यूज करें उनमें, ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है, अच्छा ये इसमें अगर आप देख लें तो जो एक्चुअल एरिया है इन दिस केस, एक एक्चुअल एरिया है और एक अप्रोक्सीमेटेड एरिया है। एक्चुअल तुम्हारे पास ये बन जाता है, अप्रोक्सीमेटेड ये कौन सा कलर है, रेडिश कलर जो बन रहा है, ब्राउन है कौन सा है, और एक ब्लू है। तो ब्लू जो एक्चुअल एरिया ये जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड है। इसमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो एक्चुअल से क्या है, कम है। इन दिस स्पेसिफिक केस जो अप्रोक्सीमेटेड है
that is less than actual. ये उस केस में हम ले रहे हैं जब हमारे पास क्या होता है, जो C है वो लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल हम ले रहे हैं. अच्छा, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, अभी मैं बात कर रहा हूं इस पे, ठीक है. अगर हम इसका इंटरवल का लेफ्ट एंड लेते हैं, आपके पास इंटरवल ए बी है, ए से लेकर बी तक टोटल इंटरवल है, इसको हम डिफरेंट पार्ट पे स्प्लिट कर रहे हैं, इसको हम सब इंटरवल दे रहे होते हैं. फिर इसको यूजुअली हम एक्स नॉट कह देते हैं या सी नॉट कह देते हैं. लेट्स सपोज दिस विल बी C1, C2, C3 एंड सो ऑन. तो ये इंटरवल बनता है. C0 C1 एक इंटरवल होगा, C1 C2 दूसरा इंटरवल होगा, C2 C3 तीसरा इंटरवल होगा एंड सो ऑन. तो इन इंटरवल्स के हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं. तो इस स्पेसिफिक फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस जिसमें हम लेफ्ट एंड को ले रहे हैं एज अ वैल्यूज ऑफ एक्स या जो हाइट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये एरिया जो है ये इससे कम होगा. एक ये ब्लूइश कलर है और एक ये समथिंग लाइक रेडिश कलर है. तो इससे आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली ये एरिया इससे कम है. जो रेडिश है, दिस सम इज नोन एज लोअर सम. और इसको हम वी डिनोट दिस बाय स्मॉल s. So when we take which end of the interval, sorry, I think I'm making a mistake. That's the right end of the interval, not left one. They are right end, not left. Sorry, my fault. Okay, if you consider right end of the interval, you are having lower sum. While in this case, जो approximate area है, that is greater than actual area. ठीक है. तो इसमें जो हमारे पास रेडिश कलर बन रहा है वो कौन सा है, वो आपके पास अप्रोक्सीमेट है, और जो ब्लूइश कलर था वो हमारे पास क्या था, दैट वाज द एक्चुअल वन. तो इस केस में आपके पास एक्चुअल जो है वो यहाँ से नीचे वाला है, और फिर अप्रोक्सीमेट में नीचे वाले के साथ ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं तकरीबन ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं. यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो है वो ग्रेटर देन एक्चुअल है, और यहाँ पर जो सी आईज हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, दे आर लेफ्ट एंड ऑफ द इंटरवल CI -1 एंड CI. उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट हमारे पास होता है जितने भी CI हम लें. लेकिन जैसे ही हम ये डेल्टा x गोज टू 0 कर रहे हैं या n गोज टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोक्सीमेट एरिया है जो कि लोअर सम है वो अप्रोच करेगा इस लाइन की तरफ, और यहाँ पर ये ऊपर से डाउन की तरफ आएगा. और ये जो एरिया इस केस में है, दिस इज नोन एज अपर सम. which we denote by capital S. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे ही n goes to infinity होता है तो उस केस में अप्रोक्सीमेट जो है वो एक्चुअल की तरफ अप्रोच करेगा. अगर हम अलग अलग सम्स की बात करेंगे तो अपर सम और लोअर सम जो होंगे दे विल अप्रोच टूवर्ड ईच अदर, दे विल बी इक्वल इन दैट केस. हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल आएंगे. ठीक है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं. अगर ये दोनों बराबर ना हुए, ये दोनों क्या है, अगर बराबर ना हुए तो फिर आप इस एरिया को प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट या कंप्यूट नहीं कर सकते. उसका फिर एरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो फिर आप फाइंड नहीं कर सकते. अगर ये दोनों बराबर ना हुए, एज n गोज टू इंफिनिटी और डेल्टा x गोज टू 0, लोअर सम और अपर सम दोनों बराबर ना हुए, so we say the function is not integrable. As we discussed in derivatives, if left hand derivative is not equal to right hand derivative, we said
that the function is not differentiable. The same thing is here. We say if lower sum is not equal to upper sum, then the function will not be different integrable. तो ये आप ध्यान में रखने की जरूरी है कि साथ बराबर आ जाए. बहरहाल ये ज़्यादातर मैथमेटिशियंस के लिए होता है कि आप उसकी किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हो कि वह इंटीग्रेबल है या नहीं है. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही बातें कर रहे हैं. सारे क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन हम सिर्फ ये कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए कि हम कैसे फाइंड करते हैं. So in exercise 1 to 4, use finite approximations to estimate the area under the graph of the function by using a lower sum. अच्छा, थोड़ा सा ध्यान में रख लें, हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो यूज करेंगे ऑब्वियसली, अगर हम इंटरवल के लेफ्ट एंड्स को ले रहे हैं तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, अपर सम उसको कहेंगे, जबकि राइट एंड जब हम लेंगे तो उसे हम लोअर सम कहेंगे. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बुक में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, हम कुछ और कर. बहरहाल जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, लोअर सम अपर सम की फिर हम ये चीज बात करेंगे कि लोअर सम जरूरी नहीं है कि वो अपर सम से कम हो. लोअर सम का मतलब फिर ये नहीं होगा जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि वो कम होगा. डिपेंड करता है फंक्शन की नेचर पे. If a function is decreasing, in that case lower sum will be smaller than upper sum, while if a function is increasing, in that case lower sum will be then greater than upper sum. बहरहाल इस पे आप इस डिस्कशन में आप ना जाएं, ठीक है. ये ज़हन में रख लें कि जब हम यहाँ पे लोअर सम और अपर सम की बात करेंगे तो लोअर सम का हमेशा के लिए मतलब ये कतई नहीं होगा कि वो उससे कम होगा, और अपर सम का मतलब ये कतई नहीं होगा कि उससे ज्यादा होगा. हाँ, बुक में क्या कर रहे हैं, बुक में वो यही कर रहे हैं कि भाई वो पहले लेबल नहीं करते, दे डोंट लेबल इट एट द बिगिनिंग, दे फर्स्ट फाइंड दिस सम by using left end of the interval, they find sum by using right end of the interval, then the smaller they call it lower and the larger they call it upper sum. वो फिर बाद में उस पर डिसाइड करते हैं, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है. एक ही चीज है, जस्ट लेबलिंग है. हम स्टार्ट में कहते हैं कि अगर मैं लेफ्ट हैंड इंटरवल ले रहा हूँ, उसका एंड पॉइंट ले रहा हूँ इंटरवल का, तो उसको हम लोअर सम कहेंगे. एंड इफ यू टेक राइट एंड ऑफ द इंटरवल, सो वी विल बी कॉलिंग इट अपर सम ऑफ द इंटरवल, अपर सम फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन. जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है. हो सकता है बुक में आंसर में डिफरेंट हो कि हम जिसको लोअर कहेंगे वहां पे उसको अपर कहा हो, जिसको हम अपर कहें उसको वहां पे लोअर कहा हो, ठीक है. तो इसमें रीजन वही है कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखते हैं, बिकॉज इंक्रीजिंग में लोअर फिर अपर बन जाता है, अपर फिर लोअर बन जाता है. वही हम ग्रेटर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई इशू नहीं होगा इफ आई फाइंड सॉल्व वन क्वेश्चन हियर. इसमें बात वही कर रहे हैं कि आप लोअर सम फाइंड करो विथ 2 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स, फिर अपर सम फाइंड करो विथ 2 रेक्टेंगल्स एंड 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है. तो हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to x square. If I solve question number 1 for it, f of x is equal to x square. Interval is given that is 0 to 1. So first we do part A and D together, A and C together, जिसमें हम डेल्टा x ले लेते हैं दोनों के लिए, चाहे पार्ट A हो चाहे C हो. तो डेल्टा x is found as b minus a divided by number of rectangles. So in this case it will be simply 1 minus 0, and number of rectangles are 2 in part A and C, so we take is 1 by 2, that is 1 by 2. So we are having the sub intervals जीरो टू 1 by 2, एक इंटरवल बन जाएगा, और दूसरा इंटरवल बन जाएगा 1 by 2 to 1. ठीक है. तो पार्ट ए के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम अगर लोअर सम की बात कर रहे हैं
मैंने कहा था हम कौन से एंड पे बात करेंगे, राइट एंड पे बात करेंगे ये। तो स्मॉल s in this case will be what? It is f of 1 by 2 into delta x plus f of 1 into delta x. Now f of x is what? That is given as x square. So f of 1 by 2 will be 1 by 2 square. Delta x is also 1 by 2. 1 square into 1 by 2. If we simplify it, we get 3 by 4. Is it 3 by 4? कितना आ रहा है? 1 by 4 plus 1, 5 by 4. So that will be 5 by 8. Whereas in C, we will be taking what? For upper sum, that will be taken as 0 and 1 by 2. Okay? So capital S in this case will be f of 0 into delta x now, plus f of 1 by 2 into 1 into delta x. F of 0 means 0 square multiply by 1 by 2 plus 1 by 2 square into 1 by 2, which give you 1 by 8. अब इस केस में ये जो फंक्शन है ये गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लोअर सम है वो अपर सम से ज्यादा है। अच्छा, बुक में जो मैंने बात की थी, बुक में क्या कर रहे हैं, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, तो इसको आप अपर सम कह रहे हैं और इसको लोअर सम कह रहे हैं। तो फिर वही कंफ्यूजन है कि आपने पहले फाइंड करना है, बाद में डिफाइन करना है। आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें आप कर सकते हो। What I would do, I would call lower sum if I consider right end of the intervals, and I would call it upper sum if I take left end of the intervals. ठीक है, तो ए और सी में ऐसे करना है, और फिर इसके बाद बी और डी के लिए आपने क्या करना है, रेक्टेंगल्स को बढ़ाने हैं। उसमें आप 4 लेंगे तो यहाँ पर 2 के बजाय आप 4 से डिवीजन करेंगे, ये जो डेल्टा एक्स होगा दैट विल बी 1 by 4। और यहाँ पे इंटरवल बनेंगे 0 to 1 by 4, 1 by 4 to 1 by 2, 1 by 2 to 3 by 4, and then 3 by 4 to 1। We will be having 4 rectangles in that case। और यहाँ पे भी 4 टर्म्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 टर्म्स आएंगे, 0, 1 by 4, 3 by 4, 1 by 2 एंड देन 3 by 4। 1 पे नहीं जाएंगे, इधर हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लास्ट तक जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और सेकंड लास्ट तक जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड while in question number 5 to 8, what would you do? You would take the midpoint of each interval. Say using rectangles, each of whose height is given by the value of the function at the midpoint of the rectangular base, right? और फिर आप इसको एरिया को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। यानी अगर हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे तो ये जो इंटरवल्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है, क्या कहा, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें फर्क क्या होगा, ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल्स वही यूजिंग 2 रेक्टेंगल्स एंड देन 4 रेक्टेंगल्स, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम 2 रेक्टेंगल्स लेंगे, whatever you call it, कैपिटल एस और स्मॉल एस, जो भी आप कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लोअर अपर की बात ही नहीं है। तो एस विल बी व्हाट, इट विल बी एफ ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक बार हमने 1 by 2 लिया तो राइट एंड ऑफ द इंटरवल,
एक बार हमने 0 लिया तो लेफ्ट हैंड ऑफ द इंटरवल। अब 0 और 1/2 का मिड पॉइंट क्या होगा? दैट इज 1/4। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दिस विल बी f of 1/4 into del x, which is what? Which is the midpoint of this interval. ठीक है, प्लस f ऑफ, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 3/4, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/4। तो यहां पर हम 3/4 इंटू डेल्टा एक्स लेंगे, जो कि 3/4 किसका मिड पॉइंट है? वो इस इंटरवल का मिड पॉइंट हम लेंगे। बाकी फिर वही कंसेप्ट है। अच्छा, ये जरा मेरा, आप कोई भी सी की वैल्यू ले लें, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ सी, ओके, आपके पास जो सम आएगा अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो वो क्या होगा? वो सेम ही आएगा। ओके, लेकिन सेम मतलब इस तरह नहीं, अब आप ये ना कहें कि यहाँ पे तो एक 5/8 आ रहा है, एक 3/8। जैसे ही हम नंबर ऑफ इंटरवल को इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो वैल्यू है लोअर सम वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, और अपर सम जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर लोअर सम स्मॉल है और वो ग्रेटर है तो स्मॉल ग्रेटर की तरफ जाएगा और ग्रेटर स्मॉल की तरफ जाएगा, और वो एक दूसरे के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे अगर फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो। ठीक है, तब हम लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, कि व्हाट वुड हैपन अगर हम ये इंक्रीज करते जाएं, यानी हम मूव कर रहे हैं इंटीग्रेशन की तरफ, किसे हम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कंसेप्ट इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। Let's suppose you want to find the limiting value of lower sum approximation to the area of the region R below the graph. This one वही ग्राफ हमने डिस्कस कर दिया। In the interval 0 to 1 on the x-axis using equal weight rectangles whose weights approaches 0 and whose number of approaches infinity. तो नंबर ऑफ इंटरवल जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेल्टा एक्स को, तो दैट इज b minus a divided by n. So we are considering general number of intervals in this case. So 1 minus 0 divided by n, so we are getting 1 by n. तो जो इंटरवल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 0, 1 by n, 1 by n, 2 by n, 2 by n, 3 by n and so on। ये हमारे पास वो सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा सम फाइंड करें, लोअर सम या अपर सम, आपकी मर्जी है। तो इस केस में जो लोअर सम है वो राइट एंड पे आ रहा है, अपर सम लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, डिपेंड करता है फंक्शन की नेचर पे कि वो क्या हो रहा है। वी आर टेकिंग f ऑफ 1/n into 1/n, दैट इज डेल्टा x प्लस f ऑफ 2/n, जो राइट एंड है वो हम ले रहे हैं इसके। ठीक है, तो वो f ऑफ 1/n into 1/n प्लस f ऑफ 2/n into 1/n, वही बात हमने डिस्कस कर लिया। f ऑफ x हमें गिवन है 1 minus x स्क्वायर है, तो f ऑफ 1/n अकॉर्डिंगली 1 minus 1/n, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। दैट इज 1 minus k/n होल स्क्वायर इनटू 1/n। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/n एंड देन सो ऑन। समेशन लीनियर होता है, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि समेशन 1 जो है वो n के बराबर होता है, और समेशन k स्क्वायर जो है वो n एंड n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर है। तो ये n और n कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आप n एक कैंसिल करें, n कॉमन निकालें, तो ये आपके पास यूँ आ जाता है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n गोज टू इन्फिनिटी, यू नो हाउ टू फाइंड दिस लिमिट। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, दैट विल बिकम 1 minus 2n क्यूब दिस वन। अगर आप इसका लिमिट फाइंड करेंगे तो ये तो डायरेक्टली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, तो वी वुड यूज एल हॉस्पिटल रूल टू फाइंड दिस लिमिट।
आपकी मर्जी, आप जैसे ये फाइंड करना चाहें उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो लिमिट आता है वो क्या होगा, वो 2/6 होता है। ठीक है, जनरली ये है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम हो तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी से आता है, दोनों के कोफिशिएंट ले लो, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट। यहाँ पर n क्यूब कोफिशिएंट इज 2, n कोफिशिएंट इज क्यूब कोफिशिएंट इज 6, so it will be 2/6. If power of numerator is greater than denominator, this limit is infinity. And if power of the denominator is greater than the power of numerator, in that case we are having this limit to be 0. तो यहाँ पर अगर आप देखें ये भी n क्यूब है, ये भी n क्यूब है, सो इसमें 2/6 आ जाएगा। So we get 1 minus 2/3. That would be 1/3. There's a mistake. Sorry, it's not 2/3. Sorry, yeah, it is 1/3. So 1 minus 1/3 is 2/3. That's right. It's my mistake. तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, सिर्फ जनरलाइजेशन हम इसमें कर रहे हैं। तो ये जो 2/3 है ये बेसिकली अब क्या है, ये एक्चुअल एरिया है, और यही फिर इसी फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रल भी होगा, जो कि आगे इस पे हम बात कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन 1 minus x square इन द इंटरवल 0 to 1. ओके, अब हम बात करते हैं रीमन सम की तरफ आ जाते हैं इसमें। तो फॉर एनी पार्टीशन p x नॉट इज इक्वल टू a, जो आपको दिया होता है इंटरवल a b, विद डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, कोई भी दो नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हम डेल्टा एक्स के कहेंगे। अगर x1 माइनस एक्स नॉट करेंगे तो उसको हम डेल्टा x1 कहेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन। और इन सब में जो मैक्सिमम होगा उसको फिर हम नॉर्म ऑफ p कहते हैं, या p नॉर्म कहते हैं। तो एस पी फॉर दैट पर्टिकुलर जो पार्टीशन है एस पी, जिसमें एफ ऑफ सी के इंटू, वही बात है, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें सी के की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट एंड ऑफ द सब इंटरवल भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, और कोई भी पॉइंट उस इंटरवल में हो सकता है। एनी सुटेबल पॉइंट आप ले सकते हो। बाज़ औक़ात कहते हैं कि इस इंटरवल में जहाँ पे सी के वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वगैरह वगैरह, उस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। सही है। तो ये जो सम आता है समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू, जो हमने लोअर सम कहा था, अपर सम कहा था, या इंटरमीडिएट पॉइंट पे कहा था, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीमन सम कहते हैं। जो केदार वाखला बिस्कट वाखला फिर बिस्कट वाखला बंदा है। दिस सम इज नोन एज रीमन सम। इफ यू सी समवेयर, बहरहाल कोई ऐसी टेक्निकल चीज अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो वही जो हमने डिस्कस कर, लोअर सम, अपर सम या मिड पॉइंट पे, वही रीमन सम ही होता है। राइट, अब यहाँ पर हम वही चीजें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ग्राफ ईच फंक्शन, बहरहाल जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप ये प्लॉटिंग करें और ये समेशन आप इनको फाइंड कर लें। बहरहाल मेरे ख्याल में आसान ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन 41 to 42 ये कह रहे हैं फाइंड नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। ओके, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन मैंने क्या बता दिया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, एंड सो ऑन, एंड देन टेक द मैक्सिमम वन। ठीक है, टेक द, इन सब में जो मैक्सिमम होगी वही आपने लेना है। द सेम थिंग हियर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, आप देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो वही क्या होगा, वही उसका नॉर्मल होगा, सॉरी नॉर्म होगा। तो आसान है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ओके, वेयर इज इन क्वेश्चन 43 to 50 हमें क्या करना है, इसका वही जो अभी एग्जांपल हमने कर लिया वो एरिया हमें इस केस में फाइंड करना है। आई वुड डू वन क्वेश्चन हियर, मे बी 48 इज ओके या 49 इज ओके। लेट मी डू 48।
Okay, in this case, function is given f of x, which is 3x plus 2x square, whereas interval is given 0 to 1. We would first find delta x here, or you may call it h as well. We are considering equal length of the subintervals. That will be 1 minus 0 divided by n, which will be 1 over n. And then we consider subintervals as 0 to 1 over n, one by n to 2 by n, two by n to and so on. At the end, we take n minus 1 by n and n by n, which is equal to 1, but we do take n by n, we don't take 1, बिकॉज में फिर आखिर में हमारे पास जो सीरीज बनता है उसमें भी थोड़ा सा मसला आता है उसको जनरलाइज करने में, उसका रूल को यूज करने में. So we find sum in this case. Let me call it capital S, whatever. Delta x into f of 1 over n. I am taking right end of the intervals. You can take left as well. Two by n plus up to f of n by n. Now function is what? That is 3x plus 2x square. We put the value of delta x, that is 1 over n. So f of 1 over n will be 3 into 1 over n plus 2 into 1 by n square. I may take 1 square by n square plus f of 2 by n, 3 into 2 by n plus 2 into 2 square divided by n plus so on, 3 into n by n two into n square by n square. कोई सवाल है या नहीं? You can ask because I can't go there.
This is equal to 1 over n. Combining these together, this one up to this one, we may take 3 common out of it, so we get 3. In fact, I can take 1 over n common as well. We can take 3 by n common to have 1 plus 2 plus 3 and so on up to n. While in the second term, this using these two, we may take 2 by n square common. We get 1 square plus 2 square we get n square. Then this becomes 1 over n. Three by n. This simple rule formula, that is n into n plus 1 divided by 2 plus 2 by n square, and this is again a rule, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. You may cancel these together. You may cancel one of it together here, and then this is basically s. Then it say find limit n goes to infinity. So I hope we have a lot of discussion about this thing. You would find limit n goes to infinity now. S that will be, ये जो 1 over n है ये अंदर चला जाएगा, तो इसका जो लिमिट आएगा वो 1/2 3/2 आ जाएगा. ये n भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये n स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ये 2n स्क्वायर, तो ये 2/6 आ जाएगा, विच इज 1/3. इट इज 3/2 एंड 1/3. ठीक है, 1/3 या 2/3. अच्छा ये सॉरी, ये 2 इधर भी है, तो दैट विल बी 2/3. And then you can take LCM of it, so that is 6 over here 9 4, so that will be 13/6. ठीक है, you know how to apply limit n goes to infinity. आप ये लिमिट फाइंड करना जानते हैं, तो ये आप फाइंड करेंगे. And so on. Okay, let's move towards the other thing now. तो ये अब वो उसकी डिफिनीशन आ जाएगी हमारे पास. अभी जो मैंने फाइंड किया, जो आ गया समथिंग, ये इंटीग्रेशन ही है. ओके, तो we can define the different integral as integral from a to b f of x dx. That is basically the limit of what, अगर हम जनरलाइज फॉर्म में ले रहे हैं तो we may take norm of p goes to 0. ठीक है, और फिर स्पेसिफिक केस हम लेते हैं कि डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अभी भी हमने वही किया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा एक्स के इज इक्वल डेल्टा एक्स. दोनों में फर्क क्या है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये सेम भी हो सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करें, इनको सेम लेते जाते हैं. ठीक है, तो ये वही डेल्टा एक्स के हो जाता है, और ये एफ ऑफ सी के की भी अगेन वही बात है कि इट कुड बी द लेफ्ट एंड, इट कुड बी द राइट एंड, इट कुड बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल एक्स के माइनस 1. These are some properties of definite integral. If you change the limits, I hope ये सबको पता है.
If you change the limits, what happens? Obviously, you will multiply the new integral by -1. Lower limit and upper limit, if they are same, integral is 0. If you multiply by a constant, you can take that constant out. Sum and difference rule भी यूज होता है इसमें. प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और हमने इसको यूज भी किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में, इफ रिमेंबर. तो हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b that can be split as integral from a to c and then a is b to c and a to b that could be written as a to c. और वाइस वर्सा, इधर से हम ये कर सकते हैं, इधर से हम ये कर सकते हैं. ठीक है. Maximum inequality, if a function has maximum value and minimum value in the interval, तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो इन क्वांटिटीज के बीच में ही रहेगा. That will be b minus a into minimum value and b minus a into maximum value. तो उसका जो एरिया होगा, और ऑब्वियसली बात है, उनके बीच में ही होगा. If f of x is greater than or equal to g of x, accordingly उसका इंटीग्रल भी बड़ा होगा. अगर यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पर इंटीग्रल भी accordingly small होगा. And if a function is positive on interval, its integral will be positive. And if function is negative, its integral will be negative. Here we could say geometrically as well कि अगर आपके पास ग्राफ जो है वो above x axis है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, and we integrate this one between an interval a to b, so this integral will be positive. Okay? And if the graph is below x axis and we find in an interval a to b, so this integral will be negative. Area in both cases will be positive, is positive, while integral will be what? It will be negative. ये वो difference आ जाता है यहाँ पर कि integration जो है it could be negative, positive both, whereas area is always positive. ये कुछ properties हैं इसमें. ओके, अभी कुछ क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 5.3, एक्सप्रेस द लिमिट्स इन क्वेश्चन 1 एज अ डिफरेंट इंटीग्रल. तो इनका हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन. अब ये रीमन सम हमें गिवन है, तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है. आसान सा वो कंसेप्ट है. तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट्स हमें गिवन है फ्रॉम 0 to 2. फंक्शन यहां से आपको आइडिया हो जाता है, ये सी के स्क्वायर है, which is f of ck, तो it will becomes f of x, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? x square dx. आपने कंपैरिजन करनी है उसी फार्मूले के साथ जो मैंने बता दिया, that is summation f of ck into delta xk. तो f of ck अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये ck स्क्वायर है, which basically leads you towards a function x square. तो आपने सब में ऐसे ही करना है, तो सारे आप इस फॉर्म में लिखने से, बहरहाल ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे जितने 11-12 तक, उन प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना है. ये कह रहे हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 इज -4, फ्रॉम 1 to 5 इज 6, फ्रॉम 1 to 5 g of x is equal to 8. अब ये फंक्शन चेंज हो गया. ठीक है. देन फाइंड द फॉलोइंग. इंटीग्रल 2 to 2 g of x, that is equal to 0. 5 to 1 g of x is equal to minus integral 1 to 5 g of x, जो कि -8 हो जाएगा. 1 to 2 3 f of x, तो 1 to 2 जो है वो -4 है, तो ये -8 हो जाएगा, सॉरी -12 हो जाएगा. 2 to 5 f of x क्या होगा? अब देखिए 1 to 2 गिवन है, 1 to 5 गिवन है, तो 2 to 5 विल बी व्हाट? वी नो दैट फॉर दिस वन आपके पास रूल जो है 1 से 5 तक, दैट इज इक्वल टू 1 to 2 प्लस 2 to 5.
Now 1 to 5 is given, 1 to 2 is given, you would find this value simply. कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें. You know how to do it. सारे करने की जरूरत नहीं है, just check it out and see if you could do that. आप वैसे ही कर लें इसको. Okay, in this case we are basically using area to find the integral. Later on we'll be using integration to find the area. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया को यूज करके इनको इंटीग्रेट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में we simply draw the graph of it and from graph we can simply find the area और फिर उसका वही इंटीग्रल होगा. Let me draw the geometry here. आर्बिट्री ज्योमेट्री होगी. तो इसका जो ग्राफ है -2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, लेट मी डू दैट. दिस इज 1, दिस इज 2. तो -2 पे इसकी वैल्यू जो है दैट इज -2 by 2 1 to 2 आ जाएगा. दैट इज 1, दिस इज 2. तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाता है, यूं ये पॉइंट आ जाएगा. वेयर इज द वैल्यू ऑन 4, 1 2 3 एंड 4 पीस की जो वैल्यू है वो कहीं जाके 5 आ जाती है. वैल्यू ऑन 4 इज व्हाट? यूं बन जाएगा ऐसे. अब ये इसका ग्राफ बनता है ऐसे, इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, दिस एरिया इन दिस स्पेसिफिक केस. तो यूजिंग एरिया, इनफैक्ट यहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या है, f इज x/2 + 3. ना इसी, क्या ये ट्रेपीजियम नहीं है बन रहा? दिस इज ट्रेपीजियम. तो ये इस ट्रेपीजियम का हाइट होगा जो कि 6 के बराबर है. ये जो है ये किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है. वेयर इज दिस इज इक्वल टू 5. तो दिस एरिया विल बी 1/2. मैंने फॉर्मूला बताया था, इट इज 2 + 5 into the height 6, that is equal to 21. So integral of this function from -2 to 5 x/2 + 3 is what? That is 21. ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है. ओके, 17 को अगर हम देख लें, 16 वही स्ट्रेट लाइन ही है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसमें भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करके चेक करें, कोई ट्रेपीजियम ही बनेगा. Whereas in 17 what happens, और 18 दोनों एक जैसे हैं. तो इसमें हमें फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू y 9 - x² अंडर रूट. तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, तो वी आर हैविंग y² इज इक्वल टू 9 - x² और x² + y² इज इक्वल टू 9. Is it not equation of circle? This is equation of circle. So in this case we are having basically semicircle. We take from -3 to 3, which is a semicircle with radius 3. तो इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया in this case will be simply πr². semicircle है तो we take divide by 2. So that is 1/2 into 9 pi, because r is equal to 3. We are in 18, we are having quarter circle. Because we integrate from where to where? From -4 to 0. So this is basically a quarter circle. I hope you can do that.
यही होगा, सिर्फ 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. In 20 and 19, obviously, what are same day. In case of 20, what happens? पहले आप ग्राफ ड्रा कर लें. तो we know graph of minus x absolute is what? मैं फिर मिटाऊंगा इसको. ये ग्राफ है किसका? माइनस एक्स एब्सोल्यूट का ग्राफ होता है. दैट इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन अबाउट y is equal to x. Sorry, x y equal to 0, yeah, x axis. Now it is 1 minus x absolute. It means you have to shift this graph 1 unit upward. We take this graph to this point. This is 1. Okay, and you see this is this point, and this is this point. This is minus 1. This is plus 1. Okay, so we have to find this area. So this height is 1. This length is what? This is 2. This is 2. This is 1. So area in this case will be as a triangle. So half base, which is equal to 2, and altitude, which is equal to 1. So area of this triangle is equal to 1. So integral of 1 minus x absolute is equal to what? That is equal to 1. Question number 21 is the same thing, लेकिन आपने इसको 2 यूनिट्स ऊपर लेके जाना है. इसका जो ग्राफ बनेगा इन केस ऑफ 22, थोड़ा 21, 22 दोनों एक जैसे. यहाँ पर सी में सर्कल आएगा, लेकिन ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा. वहाँ पे ये यही ग्राफ होगा जो ये 20 में दिया हुआ है, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा 2 यूनिट्स. तो इसमें इस तरह बनेगा 21 में. इसमें ग्राफ यूं बनता है. फिर ये 1 पे ऐसे होगा, और फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ चबूतरा बनेगा ऐसे. तो हमें ये पूरा एरिया चाहिए, -1 से लेकर 1 तक ये एरिया में चाहिए. लेट मी गेट रिड ऑफ द लाइन देयर. ये लाइन नहीं होगा, तो हमें ये पूरा एरिया चाहिए. इसमें वी वुड फाइंड दिस एरिया. इसमें 2 पार्ट्स हैं. एक हमारे पास ये रेक्टेंगल आता है और एक ट्रायंगल आता है. इस ट्रायंगल का तो ये एरिया वही होगा 1 के बराबर है, बिकॉज ये लेंथ 1 है और हाइट इसका भी 1 है, ये 2 है. ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये 2 है और ये 1 है. तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया. तो रेक्टेंगल का एरिया है 2 into 1, whereas rectangle is what? That is 1/2, and then 2 into 1. So this is equal to 3. This area is 3. ठीक है. While in 22 it is the same thing. The difference is what? यहाँ पर ये जो क्या कर दे, ये जो रेक्टेंगल ऊपर बनता है यहाँ पर ये सर्कल बन जाएगा, बाकी सेम होगा. यहाँ पर ये जो हम 1/2 2 into 1 कर रहे हैं, इट विल बी सिंपली 1/2 पाई आर स्क्वायर. आर यहाँ पर 1 के बराबर है, बिकॉज वी आर हैविंग 1 minus x square under root. ठीक है, एंड सो ऑन. तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं. एंड देन 23 to 28 आगे जो भी सवाल दिए हुए बुक में आप चेक करें. इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने नॉन फार्मूलाज है, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ x इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है. बहरहाल आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हम एरिया को यूज करते हुए इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं. अब आते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तरफ, जिसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. राइट. तो पार्ट 1 जो है, इट इज अबाउट finding derivative of integral functions. So if we say if f is a continuous function,
okay, on interval a b, and capital F of x is integral from a to x f of t dt, then its derivative is what, you don't need to find anything. यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेंड में, उसमें आप t को इससे रिप्लेस करोगे. This is known as fundamental theorem of calculus. Whatever you got here, f of t, if this is sin t, you get sin x. If this is sin square t, this is sin square x, and so on. इसका फायदा एक तो एक तरीका है कि आप पहले इंटीग्रेट करें और फिर डेरिवेटिव फाइंड करें. बाज़ औक़ात ये इंटीग्रल आपके पास इतना आसान नहीं होता. You know there are many functions, integration is not easy to find. Right? So what do? We directly apply its derivative, जो कि बाज़ औक़ात हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, हमें ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए होती है, तो उसके लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं. ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती. कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखें, आसान एग्जांपल्स हैं. y is equal to this one, so dy dx of integral from a to x t q plus 1 dt, डायरेक्ट आप लिख लेंगे, that is x square x cube plus 1 is the answer. अगर x to 5 है तो इससे पहले आपने उसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a to x करना है. वो रूल अप्लाई कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा एंड वी टेक 5 to x और फिर वही रूल अप्लाई कर लेंगे. अच्छा, समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि जो लिमिट है वो क्या होता है, वो x नहीं होता डायरेक्टली, हमारे पास वो x स्क्वायर होता है या x की कोई फंक्शन ऑफ x होगा. If somebody asks you what is if y is equal to 1 to x square cos t, तो अब डायरेक्ट आप x स्क्वायर पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर हम चेन रूल यूज करते हैं. वो जो आपको लिमिट्स में दिया होता है उसको हम u के बराबर ले लेते हैं, ठीक है. एंड देन वी गेट व्हाट, y इज इंटीग्रल फ्रॉम 1 to u cos t dt, और फिर हम फाइंड करेंगे dy by du into du by dx, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे. अब dy by du में क्या करना है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करना है, which will be simply cos u into du by dx, that is 2x. अब u को वापस रिप्लेस करो x स्क्वायर से, तो इट बिकम्स 2x into cos x स्क्वायर. कंसेप्ट वही है. अब पहले इसको कन्वर्ट करेंगे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है पार्ट 1 उसमें, और इसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करेंगे. The same thing here, you see we are having function of x, ठीक है. तो इसको पहले आप ऊपर लेके जाएं तो माइनस लगाएंगे, और फिर क्या करना है, इसको u के बराबर लेना होता है, ठीक है. वही तरीका है, u के बराबर लेंगे और फिर साथ में du by dx कर लेंगे. तो you see that यहाँ पर आप t को रिप्लेस करोगे 1 plus 3x स्क्वायर से, u को u कर दिया आपने, और फिर उसके डेरिवेटिव 1 plus 3x स्क्वायर. सो वी गेट इट शुड बी 6x. मे बी कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ से या कुछ हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कैंसिलेशन हो गया, आपके पास ही आ जाता है फाइनली. एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है. उसमें क्या करते हैं, हम पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2. वो पार्ट 1 है जिसमें हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है. इसमें वही हम करेंगे, एरिया अंडर द कर्व के लिए भी अब यूज करेंगे, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस. अच्छा, उसके लिए जरूरी होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. एरिया में और इंटीग्रेशन में फर्क ये होता है, अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, लेट्स सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है, could be anywhere and something like that, यूं जा रहा है, एंड somebody ask you, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करो, फ्रॉम a to b इंटीग्रेट करो, तो क्या करोगे, ये आपके पास जब एरिया फाइंड होगा तो नेगेटिव होगा बिकॉज ये नीचे है. यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे तो वो पॉजिटिव होगा. तो जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव के साथ कैंसिल होगा, जो नेट रह जाएगा वही आपके पास उसका इंटीग्रल होगा. तो इंटीग्रल के लिए हम डायरेक्टली ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx. जो कुछ भी आता है वही आपके पास क्या होगा, उसका इंटीग्रल होगा. लेकिन जब आप एरिया फाइंड करेंगे इस केस में, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको जो पार्ट अबव एक्स एक्सिस है उसका अलग से एरिया फाइंड करो, जो नीचे है उसको अलग से फाइंड करोगे. तो उसके लिए पहले आपको ये पॉइंट फाइंड करना होता है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन 0 होता है.
ठीक है, तो ये वो डू व्हाट, जो फंक्शन दिया होता है इसको आप पहले 0 के बराबर लेते हैं, फंक्शन को 0 के बराबर लेते हैं। ऐसा ना हो कि आप डेरिवेटिव 0 के बराबर लें, डेरिवेटिव 0 के बराबर लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फंक्शन 0 के बराबर लेंगे तो हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, आप पहले इसको फाइंड करो फ्रॉम ए टू सी एफ डी एक्स, और इसका एब्सोल्यूट लोगे, ध्यान में रहे, एब्सोल्यूट नहीं लिया तो फिर वही इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो, एब्सोल्यूट लेंगे तो एरिया फाइंड करेंगे। सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका भी आप क्या करो, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास एरिया आ जाएगा। तो पहले आप एफ ऑफ एक्स को 0 के बराबर ले लें, वहां से आपके पास आपने वो पॉइंट्स लेना जो कि इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है, और फिर आपने उसको अलग अलग इंटीग्रेट करके उनका एरिया फिर आखिर में ऐड करना है। तो जस्ट यू सी दैट ये फंक्शन जब हम 0 के बराबर लेंगे और इसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो आ जाता है हमारे पास एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू। अगर आप इसको 0 के बराबर लेते हैं तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाती है 0, एक वैल्यू आ जाता है 1, एक आ जाता है इसमें 2, ये -1 है, सॉरी। अब इसमें ये दो जो पॉइंट्स हैं -1 और 2, वो तो वैसे भी एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके तो हमें कोई वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम -1 टू 0, एब्सोल्यूट लेंगे प्लस फंक्शन वही आपने लेना है, इसके बाद फिर आप 0 से लेकर 2 तक जाएंगे और एब्सोल्यूट लेंगे। बाकी इंटीग्रेशन जो आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन -1 टू 0, ये इसके लिए आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है, इसलिए आपको वो नहीं करना। यू शुड लर्न हाउ टू यूज कैलकुलेटर फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसको फाइंड कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, शुड प्रैक्टिस इट, और फिर दोनों को आपने ऐड करना है। आई होप यू हैव कैलकुलेटर जिसमें इंटीग्रेशन होता है, और ऐड करेंगे तो इसका जो एरिया बनेगा वो 37/12 आ जाएगा, राइट। सो अब ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करना है, ये पार्ट 2 पहला पार्ट जो है। तो आई होप आप ये सारे कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करें, अपर लिमिट पुट करें और फिर लोअर लिमिट पुट करें। ठीक है, तो आप एक बुक से देख लें, आप जैसे भी करें सर प्रैक्टिस करें कि आपने इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28, इसमें आप पहले स्प्लिटिंग करेंगे बिकॉज एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे -4 से 0 तक प्लस 0 से लेकर 4 तक, -4 से 0 तक एक्स एब्सोल्यूट जो है इसको आप -x लेंगे, जबकि 0 से लेकर 4 तक आप क्या करेंगे, वो +x लेंगे। बाकी तो फिर आसान है कैसे करना है इसको, इसमें एब्सोल्यूट नहीं लेना बिकॉज यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अच्छा, इसमें जब करेंगे तो इसमें आप स्प्लिट करेंगे π/2 से, बिकॉज ये जो कॉज एब्सोल्यूट होगा वो 0 से π/2 तक जब लेंगे तो प्लस लेंगे, you will take it cos x, where from π/2 to π, इस केस में फिर आपने क्या करना है, cos x एब्सोल्यूट को माइनस cos x लेना है। पहले पार्ट की जरूरत नहीं हो तो आप डायरेक्ट वैसे ही फाइंड कर लेंगे, ठीक है। या आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 0 से लेकर π/2 तक ये 2 cos x बन जाएगा, जबकि π/2 से π तक ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ये cos x होगा, ये माइनस cos x होगा, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं, बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने सब में ऐसा ही करना है।
फिर इसके बाद 33 से 38 तक, बल्कि 46 तक आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 यूज करना है। इसमें देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ 33 को, तो व्हाट वुड आई डू, आई विल टेक u इज इक्वल टू अंडर रूट। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पहले इंटीग्रेशन फाइंड करो और फिर डेरिवेटिव ले लो, या इसको आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से डायरेक्ट इंटीग्रेशन को वो कर लो। बहरहाल आप यू नो दैट, इसको आप पहले इंटीग्रेट करके फिर इसमें अंडर रूट एक्स और 0 पुट करके इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो, या आप इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करो, आपकी मर्जी है। ओके, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ले लेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। If you have called this quantity as y, so y will become what? Integral from where to where? From 0 to u cos t dt, जिसे हम dy by du फाइंड करते हैं। बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये सिंपल यहाँ पे cos u हो जाएगा। अब हमें तो dy by dx चाहिए, by chain rule that is dy by du into du by dx, ये u है। तो dy by du is found which is cos u into 1 by under root x, 1/2 under root x। You may replace u with its value, so that is 1/2 under root x into cos under root x। ठीक है, और एक डायरेक्ट में क्या होता है, आप इसको इंटीग्रेट करो, cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, और फिर लिमिट्स पुट करोगे अंडर रूट एक्स 0, तो दैट बिकम साइन अंडर रूट एक्स, और साइन 0 क्या होता है, 0। और फिर अब इसकी डेरिवेटिव ले लो, तो साइन की डेरिवेटिव कॉस हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। तो हम फिर से इसको डेरिवेटिव लेंगे इसका, दिस इज y, so dy by dx will be sin की डेरिवेटिव cos under root x into derivative of under root x, which is exactly the same जो यहाँ पर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। तो ये आप सारे करेंगे 46 तक, इस तरह ये सारे, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सब में सेम ही करना है। ओके, फिर इसके बाद 47 से आगे जो है 50 तक, इसमें हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का मैंने तरीका बता दिया है। इफ़ यू डू क्वेश्चन नंबर 47, y इज इक्वल टू दिस वन, तो हम पहले y को 0 के बराबर ले लेंगे। एरिया के लिए ज़रूरी है, इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है इसको 0 के बराबर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो इसे माइनस एक्स कॉमन निकालें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x, जहाँ पे ये 0 होता है, एक -2 पे और दूसरा 0 पे। तो ये जो यहाँ पर एरिया होगा वो आपने 3 पार्ट्स में अब डिवाइड करना है, -3 से लेकर -2 तक, बिकॉज ये दोनों जो जीरोज हैं वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद हैं। तो आप लेंगे एक -3 से लेकर -2 तक,
इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो और फिर एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट लेना ज़रूरी है, नहीं लिया तो फिर गलत होगा, फिर इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, एरिया नहीं। फिर इसके बाद -2 से लेकर आप जाएंगे कहाँ तक, 0 तक, एब्सोल्यूट लेंगे। और फिर इसके बाद जाएंगे आप, f साथ में रहेगा, फिर इसके बाद आप जाएंगे 0 से लेकर 2 तक f, और हर एक का आपने अलग अलग एब्सोल्यूट लेना है, और फिर आखिर में ऐड करें। अब ये जो इंटीग्रेशन है वैसे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बिकॉज आप 3 बार एक इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करें, कैलकुलेटर से करें। ठीक है, यू शुड डू इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यू मस्ट लर्न कैलकुलेटर, बिकॉज आगे जाके फिर ये आपको मसला आएगा जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसमें फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डायरेक्ट जो वैल्यूज होते हैं वो कैलकुलेटर से ही फाइंड करते हैं मेरे को। तो आई होप यू कैन डू दैट। ओके, इसके बाद हमें चाहिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस केस में जो 51 है, इसका जो शेडेड रीजन है ये ऊपर वाला दिया हुआ है, ये पार्ट दिया है, और ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रल फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 1, और ये फंक्शन। तो क्या कर लेंगे, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है तो उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल minus area under the curve, so which is integral from 0 to pi, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब यहां पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इज पाई while height is 2, so this will simply 2 pi, बाकी इसको आप इंटीग्रेट करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 0 to pi 1 plus cos x into dx। द सेम थिंग हियर, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, देखें ये जो होगा इस फंक्शन को अगर हम π/6 से 5π/6 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे, उससे इस रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास इसका उलट आएगा कि इंटीग्रल फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम π/6 टू 5π/6 into sin x dx माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इसका एरिया क्या होगा, 5π/6 माइनस π/6 इज 2π/3, आई थिंक इट्स 2π/3, वेयर एज ये जो इसका लेंथ है ये 0.1/2 पे आता है, ध्यान में रहे। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी हाफ, जो कि 1/2 लेंथ है या विड्थ है, और लेंथ क्या है इसका, 2π/3 है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी दिस क्वांटिटी। ये इंटीग्रेशन फाइंड करके ये पार्ट आपने उसे सब्ट्रैक्ट करना है। सेम थिंग इन 53 एंड सो ऑन। अच्छा, 53 में क्या करना है, उसमें अगर हम देख लें तो जब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -π/4 टू π/4 तो हमारे पास कौन सा रीजन आएगा, इंटीग्रेशन से हमारे पास ये, हम ये एरिया अलग से फाइंड कर लेते हैं, ये एरिया अलग से फाइंड करते हैं, और फिर ये जो रेक्टेंगल आता है ना, ये रेक्टेंगल, इससे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे भी सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, आप -π/4 टू π/4 अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एज ए होल तो इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, -π/4 से 0 तक अलग और 0 से π/4 तक अलग। तो ये आप फाइंड करो। ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया असल में
बराबर होता है, ये सिमेट्री है। तो क्या कर लें, ये जो रेक्टेंगल का एरिया एज ए होल आ जाएगा √2, और ये लेंथ हमारे पास π/4 है, 2π/π/2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा सिंपल। तो इस तरह भी कर सकते हैं बगैर इंटीग्रेशन के आप करना चाहें। यहाँ पर वही चीज़ है, हम ये ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 to 1 ये एरिया आता है, ठीक है। और रेक्टेंगल से इसका एरिया सेपरेट करोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इसमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ध्यान में रख लें। -π/4 से 0 तक सीकेंड स्क्वायर है, और 0 से 1 तक 1 - t स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, जब एरिया फाइंड करेंगे ना, एरिया विल बी व्हाट, रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, हाइट उसका 2 के बराबर है, तो हम यूं करेंगे, ये माइनस इंटीग्रल -π/4 to 1 f(t) dt करेंगे। लेकिन ये f(t) जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप -π/4 से 0 तक करेंगे, और फिर इसे 0 से 1 तक इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। So that's it for this week. नेक्स्ट वीक पे फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे एरिया बिटवीन द कर्व्स, यानी इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो वगैरह करेंगे। बिटवीन द कर्व है, इसके बाद वॉल्यूम है, और वगैरह वगैरह ये चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क।